Hello students, I Anshu Shehrawat welcome you all to your education platform English Vinglish. Students, today I am going to explain you poem number 3 from your syllabus, that is The Voice of the Rain. Students, firstly I'll tell you the introduction and theme of this amazing poem, then I'll make you understand this poem line by line, stanza by stanza. So students, you just no need to worry, just pay attention to my words and this video so that this poem will be clear to you and you will be able to solve each and every question arises from this poem. So students, let's proceed for the introduction of this amazing poem. The Voice of the Rain is an imaginary dialogue between the poet and the rain. The poet casually asks the rain who it is. To his surprise, the rain answers the question and tells about its birth and end. The poet understands the tale of rain and translates it for the readers. So students, basically इस पोएम में जो भी कन्वर्सेशन, जो भी डायलॉग्स टेक्स प्लेस हो रहे हैं पोएट और रेन के बीच में, वो एक इमेजिनेशन है. ओके, वो जस्ट एक इमेजिनरी डायलॉग्स हैं. वो सब कुछ पोएट की इमेजिनेशन में हो रहा है. इमेजिनेशन में पोएट जो है वो रेन से एक कैजुअल सा क्वेश्चन आस्क करते हैं. वो कहते हैं हु इट इज़, और सरप्राइजिंगली जो रेन है वो भी उनको अपने बर्थ और एंड के बारे में सारी बातें बताती हैं. और जब पोएट जो ये सारी बातें जो रेन उन्हें अपने बर्थ और एंड के बारे में बताती है उन्हें समझ जाते हैं, तो वो हम जैसे रीडर्स के लिए इसे एक पोएम के रूप में ट्रांसलेट करते हैं. So students, let's proceed for the theme. The poem celebrates rain and its natural cycle for the benefit of the earth and the life it supports. The poem is in the form of a conversation between the poet and the rain. The whole narrative of the rain is about how it leaves the ground, fulfill its duties in the atmosphere and comes back to the ground out of love in order to beautify the world and spread life. It says that it purifies earth and also gives life to it. It returns back to earth exactly like a song, which finally returns to its singer in the form of appreciation after it is heard everywhere around the globe. सो स्टूडेंट्स, इस पोएम में बेसिकली ये बताया गया है कि कैसे जो रेन है वो ग्राउंड को छोड़ती है, अपनी ड्यूटीज़ को वो एटमॉस्फेयर में कैसे फुलफ़िल करती है और कैसे वो दोबारा से ही ग्राउंड पे आ जाती है. वो ग्राउंड पे दोबारा एक सॉन्ग की वे में आती है. जैसे जो सिंगर है वो एक सॉन्ग को गाता है, पीपल थ्रू द ग्लोब लिसन टू इट एंड अप्रिशिएट इट. और लास्ट में जो अप्रिशिएशन होती है वो जब सिंगर को मिलती है तो उस अप्रिशिएशन के ज़रिए जो सॉन्ग है वो दोबारा से सिंगर के पास आ जाता है. उसी तरीके से उसी वे में जो रेन है वो दोबारा अर्थ पर आ जाती है, दोबारा ग्राउंड पर आ जाती है, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करके इस पूरी एटमॉस्फेयर को, वर्ल्ड को ब्यूटिफाई करके. Okay students, so this is all about the introduction and theme of this poem. Let's proceed for the poem. Here is the stanza number 1 for this poem. And who art tu, said I to the soft falling showers, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. So students, let's have a look at the explanation. In the above lines, the poet asks the identity of the soft falling showers, to which the rain replies in a strange manner. The poet gets really surprised because his question has been answered, and that too by the rain. He then takes up the task of translating the answer for the readers. The rain says that it is the poem of the earth and it is born in the form of invisible and intangible vapors.
These vapors rise eternally from the land and bottomless ocean. तो स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा में बेसिकली क्या होता है कि जो पोएट है वो सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यहाँ पे रेन को बोला गया है, रेन की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उन्हें बोला गया है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो पोएट है वो रेन की जो ड्रॉपलेट्स है, रेन जो है, उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछते हैं कि हु इट इज़, और सरप्राइजिंगली इन अ स्ट्रेंज जो रिप्लाई आता है वो एक स्ट्रेंज मैनर होता है। क्यों? क्योंकि पोएट के लिए तो, क्योंकि पोएट ने कभी ऐसा एस्पेक्ट नहीं किया था कि रेन जो है वो उसके क्वेश्चन का आंसर देगी, वो उसकी जो क्वेश्चन उसने पूछा है उसका रिप्लाई भी देगी, बट उसने रिप्लाई दिया, इसलिए वो पोएट के लिए तो स्ट्रेंज है ही, हमारे लिए भी स्ट्रेंज है। और सरप्राइजिंगली जो पोएट है उसे आंसर कुछ इस तरीके से मिला कि वो बोलती है कि दिस इज़ द पोएम ऑफ द रेन, और जो वो बॉर्न हुई है वो एक इनविजिबल और इंटैंजिबल वेपर्स से बॉर्न हुई है, और जो ये वेपर्स हैं वो कैसे एटर्नली राइज हुए हैं लैंड से और बॉटमलेस सी से। तो स्टूडेंट्स, यही सब कुछ इस स्टैंजा में बताया गया था। नाउ लेट्स प्रोसीड टू स्टैंजा नंबर 2। Upward to heaven, when an vaguely formed D altogether changed and yet the same, I descend to leave the trot atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only latent, unborn. Students, let's have a look at the explanation of this stanza. The rain tells the poet that it rises upwards towards the sky in the form of vapors, where it changes its form, condense into water droplets. It also says that altogether its forms get changed. It still remains the same. The rain changed its appearance from intangible vapors to abstract clouds, yet at its core it remains the rain. This is the universal law that energy is never destroyed, only transferred from one form to another. The rain comes down to restore the drought-ridden dry lands. It also washes away the dust and small particles from the earth's surface. It also gives life to the seeds which otherwise would have remained hidden and unborn inside the earth. These seeds then grow into a plant because of the water provided by the rain. It gives life to the earth, making it pure and beautiful. तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टेंजा है, ये जो रेन की पूरी जर्नी है, नेचुरल साइकिल है, उसे बहुत ही ब्यूटीफाई वे में एक्सप्रेस करता है। वो बताता है कि कैसे जो रेन है, रेन के जो इंटैंजिबल वेपर्स हैं वो अर्थ के सरफेस से उठ करके, उसे ये बोलता है कंडेंस। ओके, अर्थ के जो सरफेस होता है उससे उठ करके वो स्काई की तरफ जाते हैं और वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लाउड बन जाते हैं, लेकिन रहते वो रेन ही हैं। ओके, रहते वो रेन ही हैं। जैसे कि यहाँ पे एक यूनिवर्सल लॉ भी है कि जो एनर्जी है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बट वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो वही चीज़ यहाँ हो रही है। वो एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। वो एक जो इंटैंजिबल वेपर थी वो जा कर के चेंज हुई है एब्स्ट्रैक्ट क्लाउड में, लेकिन रही तो वो रेन ही है। दैट रिमेन्स रेन ओनली। और कैसे जो रेन है वो रिस्टोर करने के लिए किसको रिस्टोर करेगी? वो ड्राफ्ट को, रिडन को, ड्राई एरियाज जो हैं अर्थ पे, उनको रिस्टोर करने के लिए जो रेन है वो दोबारा से लैंड पर आती है। वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं अर्थ के ऊपर, उसे भी वो वॉश ऑफ कर देती है। वो लाइफ देती है सीड्स को जो कि अर्थ के अंदर हिडन होते हैं। अगर वो उन्हें लाइफ
वो उन्हें कैसे लाइफ देती है, वो उन्हें वाटर देती है। ओके, वाटर देने के बाद वो एक प्लांट बन जाते हैं। अगर वो उन्हें वाटर नहीं देगी तो वो जो सीड्स हैं वो अर्थ की जो सरफेस होता है उसमें हिडन रह जाएंगे, अनबॉर्न रह जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला गया है इट ऑल्सो गिव्स लाइफ। वो लाइफ कैसे देती है, वो सीड्स को लाइफ देती है। और जब वो सीड्स को लाइफ देगी कैसे, पानी दे करके, तो वो सीड्स जो हैं वो बड़े होंगे, वो जर्मिनेशन करेंगे, वो प्लांट फॉर्म हो जाएगा उनका। ओके, तो इस तरीके से जो रेन है वो अर्थ को लाइफ देती है, अर्थ को प्योरीफाई कर देती है, अर्थ को ब्यूटीफुल बना देती है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड टू स्टैंजा नंबर 3। And forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, rest D or unrest D, duly with love returns. Now students, let's proceed for the explanation of this stanza. The rain says that by day and night it provides life, care, enrichment and water to the place from where it originated. Origin वो कहाँ से हुई थी, अर्थ के सरफेस से हुई थी। तो लास्ट में वो अर्थ के सरफेस पे ही आती है। जो अर्थ का सरफेस है वो उसे जो उसकी केयर करती है, तो वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो डस्ट होता है, उसे वॉश्ड ऑफ कर देती है। जो सीड्स वहाँ पर जो हिडन होते हैं सीड्स, जो अनबॉर्न होते हैं सीड्स, उन्हें वाटर देके एक प्लांट बनाती है, उन्हें लाइफ देती है, वो एनरिचमेंट करती है और वो वाटर भी देती है उस प्लेस को जहाँ से वो ओरिजिन हुई थी, मीन्स ग्राउंड। द रेन कीप्स enhancing the beauty and purity of the earth by preparing a life cycle for itself again. और ये जो लाइफ साइकिल है ये रिपीट होता रहता है, और जैसे ये रिपीट होता रहता है तो ये अर्थ को और ज़्यादा ब्यूटिफाई कर देता है और ज़्यादा प्योरीफाई कर देता है। ठीक है, जितना ज़्यादा ये लाइफ साइकिल अपने आप को रिपीट करता है उतनी ज़्यादा लाइफ आती है, उतनी ज़्यादा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं अर्थ की सरफेस से वो वॉश्ड ऑफ हो जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा जो अर्थ है वो ब्यूटीफुल और प्योरीफाई हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ this is something more extra that we have to look for. The last two lines have been placed in parentheses because they are not a part of the conversation between the rain and the poet. Rather, it's aftermath where the poet reflects on the conversation. He realizes that the rain's life is similar to that of any song. A song's birthplace is poet's heart. Once complete, it is passed on, wanders from one person to another. It may change desk D or remain the same undesk D as it travels, but one day it returns to the poet with all due love of its listeners. तो स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट की जो दो लाइन है, ये जो पोएट है, इन्होंने जैसे जो रेन है वो वापस अपने ओरिजिन पे आती है, उसे एक सॉन्ग से जो है आपको समझाने की, सॉन्ग की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे जैसे एक जो सिंगर होता है या पोएट होता है, वो जब एक सॉन्ग गाता है वो सॉन्ग वंडर करता है, जो पीपल होते हैं थ्रू द ग्लोब उसे सुनते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं। ओके, अप्रिशिएट करने के बाद जो लव होता है लिसनर्स का, लव इन द फॉर्म ऑफ लव, अप्रिशिएशन, ओके, इस फॉर्म में जो सॉन्ग है वो सिंगर या पोएट के पास वापस से आ जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे रेन जो है वो एक इंटेंजिबल वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लाउड बन जाती है और वापस अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करके, अर्थ को प्योरीफाई करके, ब्यूटीफाई करके, सारी जो चीज़ें हैं उसकी ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करके वो वापस जब अर्थ पर आती है वो ठीक उसी तरीके से आती है। क्योंकि जो
अर्थ है उसे क्या मिल रहा है, उसे लाइफ मिल रही है, उसे ब्यूटी मिल रही है, उसे प्योरिटी मिल रही है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे सिंगर या पोएट को क्या मिल रहा है, अप्रिशिएशन मिल रहा है, लव मिल रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और ये जो 2 लाइन है ये कन्वर्सेशन में एडेड नहीं थी, इसलिए इन्हें ब्रैकेट में पुट इन किया गया है। तो कई बार ये एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन भी आता है कि ये 2 लाइन्स जो हैं वो ब्रैकेट में पुट इन क्यों हैं। ओके, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द पोएट एंड द रेन, दिस इज़ जस्ट एन इमेजिनरी लाइन, द पोएट यूज इट टू रिफ्लेक्ट द conversation of the rain and the poet. These are the thinking of the poet. Okay students, these are the thinking of the poet. These are not the conversation that takes place between the poet and the rain. These lines are used by the poet to reflect rain's life. Okay students, I hope आपको ये poem अच्छे से समझ में आ गई. This was a really beautiful and natural poem. Okay students, I hope my videos are helping you. If you like my video, then like it. If you don't like, then you are free to tap on that dislike button. And please students, don't forget to comment me if you want me to explain the topics in which you are very confusing. Okay students, if you want more and more videos and notification of that, please click on the subscribe button and on your notification bell. Okay students, sorry because I was not able to uploading videos from 3 to 4 days because I was busy in some extracurricular activities, and I thought that extracurricular activities are also important to refresh your mind, and you should do. Thank you and have a nice day ahead.